Hi friends, this is my channel Miss Medico. Hope you are fine. You are doing good. I'm also doing good, and I'm with you with another video lecture of Sikkim. We are going to study examination of Sikkim. If you like my videos, please subscribe my channel. Press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. If you feel that I'm not good at video making or some I think modification is needed, you can directly comment me in comment section so that I will improve. It means a lot for me. So let's start today's video lecture of examination of Sikkim. Before we begin the examination of Sikkim, it's important to make the patient comfortable. In any examination, we have to make the patient comfortable, and we have to examine the patient in an appropriate environment. And we know that in Sikkim, what we have to look for these lesions, bumps, lumps, abscesses, macules, papules. We have to look for those conditions, skin change, color, or other things. We have to look for these conditions in skin. Particularly, we have to look for the skin lesions. Skin lesions have to be described in three terms. So we have to describe the skin lesion in three terms. Number one, we have to describe its morphology, we have to describe its configuration, we have to describe its distribution. Morphology means external appearance, how it looks, then the configuration, and then distribution, where it lies, where it occurs first. It's very necessary. Then there is examination for environment for examination. We have to make a suitable environment for the patient to be examined, and we have to examine the patient in natural light. ओब्लिक लाइट में भी नेसेसरी, वही बताता है कि ओब्लिक लाइट भी ज़रूरत लगेगी टू डिटेक्ट द मिनिमल एलिवेशंस ऑफ लीजेंस, while subdued light enhances subtle changes in pigmentation. ओब्लिक लाइट जो है वो बहुत नेसेसरी होगी जब हमें एलिवेशंस को डिटेक्ट करना होगा, तो ओब्लिक लाइट की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हम सबड्यूड लाइट डालेंगे तो उससे पिगमेंटेशन में सब्टल चेंज आएगी, तो दैट शुड बी अवॉइडेड. वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ oblique light. And always examine the patient in natural light. It's number one rule in Sikkim. So number second rule is we have to expose the area affected. Do not hesitate to ask the patient to undress if needed in presence of attendant if required. Do not let stubbornness, shyness, or the gender of the patient put you off. So we have to expose the area affected where the acne or where the skin lesions are present, and we have not to hesitate to ask the patient to undress if needed. We have to undress the patient in presence of attendant, and we have not to let stubborn or greediness or shyness or any kind of gender. We have not to, we have not be affected by these factors. Actually, if we need the undressing of the patient, we have to do that. Now next is the, if there's any makeup, and we have to remove that if necessary, because if anybody wears makeup or anything that causes a, that hides that condition, we have to remove the makeup if necessary. And then there is magnification. For that we have to make use of an ordinary magnifying glass 5x that can provide you the much needed information. So we have to make use of that magnifying glass. So what we remember here in examination, we have to always use the natural light. Number second, we have to expose if we need that. We have to remove the makeup, and we have to magnify the area if needed, because that will provide us much needed information. Now the primary skin lesions. You know what, first thing what we have to look for is morphology of skin is more important for reaching a diagnosis than their distribution.
because we have to look for its external appearance, and that's really important for making a diagnosis. The initial or characteristic lesions of a disease are called primary lesions. So the question arises, what are the primary lesions? What are primary lesions? So initial और कैरेक्टरिस्टिक लीजन, हम प्राइमरी लीजन्स को एक और नाम देते हैं, इनको हम कैरेक्टरिस्टिक लीजन बोलते हैं, बिकॉज हर किसी बीमारी में एक कैरेक्टरिस्टिक लीजन होता है. जैसे सोरियासिस में एक एन्यूलर टाइप ऑफ लीजन होता है, विटिलिगो में अलग तरह का मैक्यूल होता है, इसी तरह एक्नी में जो है अलग तरह के कॉमिडोन्स, अलग तरह के लीजन्स होते हैं. सो द इनिशियल और कैरेक्टरिस्टिक लीजन इज कॉल्ड द प्राइमरी लीजन. वी हैव टू लुक फॉर दैट प्राइमरी लीजन, एंड दीज लीजन्स आर ऑफन मॉडिफाइड बाय स्क्रैच मार्क्स, अल्सर्स एंड अदर इवेंट्स दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी चेन्स. और जो ये प्राइमरी लीजन्स है, दे आर मॉडिफाइड, एक्चुअली दे आर मॉडिफाइड बाय द स्क्रैच मार्क्स, they are modified by ulcers, and they are modified by other events that we call the secondary genes. Now the rule is to find out the primary lesion. In examination of the skin, we have to find out the primary lesion and study it closely, and then note secondary changes, whether it's ulcer, whether it's any other scratch mark or any other inflammation, etc. We have to look for that. So primary rule in the skin examination, we have to find the characteristic lesion or initial lesion that we call the primary lesion. We have to look for that, and we have to study it closely, and then we have to note for the secondary changes. Now the terminology of the primary skin lesions. So now we find the primary lesion, but there is the naming of those lesions, there is the terminology, and for that we have to study. Number one, there is the flat lesions. The flat lesions we call the macule. इनका टेक्सचर जो है वो देखना है. अगर वो स्मॉल होंगे लेस देन 0.5 सेंटीमीटर्स को मैक्यूल बोलते हैं. अगर लार्ज होगा ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर, उनको हम पैच बोलते हैं. अगर नॉर्मल टेक्सचर का होगा, अगर वो इंड्यूरेटेड होगा तब उसको प्लाक बोलते हैं. फ्लैट ही होता है, लेकिन अगर वो इंड्यूरेटेड होता है ऐसे ऐसे इंड्यूरेटेड, उसको प्लाक बोलते हैं. और अगर वो लार्ज होगा ग्रेटर, तब भी उसको प्लाक ही बोलेंगे. इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, लेकिन फ्लैट लीजन्स को हम लोग मैक्यूल्स बोल सकते हैं, पैच बोल सकते हैं, प्लाक बोल सकते हैं. अगर वो नॉर्मल टेक्सचर का होगा तभी हम मैक्यूल बोलेंगे या पैच बोलेंगे. अगर वो इंड्यूरेटेड होगा तब हम इसको प्लाक बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारा फ्लैट लीजन्स का है. देन देयर इज एलिवेटेड लीजन्स. एलिवेटेड लीजन्स में अगर हमारे पास सॉलिड लीजन होगा, तो अगर वो लेस देन 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कि स्मॉल है, तो उसको सॉलिड लीजन को हम पैप्यूल बोलते हैं. अगर उसका डायमीटर ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर होगा और वो सॉलिड लीजन होगा, तब उसको नड्यूल बोलते हैं. ये आपको रिमेंबर याद रखना होगा. एलिवेटेड लीजन में सबसे पहले मैंने कहा सॉलिड लीजन हो सकता है, इनको हमने स्टडी करना है. फॉर ए वाइल यू जस्ट ट्रस्ट मी कि सॉलिड लीजन होगा, लेकिन लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होगा तो पैप्यूल होएगा, ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर होएगा तो नोड्यूल होगा. इस तरह फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन है, लेकिन फ्लूइड फिल्ड है, इसमें एलिवेटेड लीजन है लेकिन इसमें फ्लूइड फिल्ड है. डायमीटर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होगा तो उसको हम वेसाइकल बोलते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर होगा वो बुल्ला कहलाता है. इसी तरह फ्लूइड फिल्ड नहीं, पास फिल्ड. पहले था फ्लूइड फिल्ड जिसको हम लोग वेसाइकल बोलते हैं. अब पास फिल्ड है तो पास से पास्चूल निकलता है. अगर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर डाया का होगा और ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर का लीजन होगा पास फिल्ड, तभी पास्चूल बोलते हैं. इस तरह इंड्यूरेटेड लीजन्स जो है, इंड्यूरेटेड लीजन्स में जो डायमीटर होता है वो ग्रेटर होता है देन डेप्थ. इसमें प्लाक ही आता है, इसकी एग्जाम्पल प्लाक ही. इस तरह लीजन्स होते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ ब्लड. इसमें स्मॉल जो होते हैं जिनका डायमीटर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होगा, उनको पेटिकीज बोलते हैं, एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ ब्लड की वजह से. अगर ग्रेटर देन 0 होगा, लार्ज एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ आरबीसीज होगी, तो उसको इकाइमोसिस बोलते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा व्हाट इज मैक्यूल, व्हाट इज प्लाक, व्हाट इज पैप्यूल, व्हाट इज वेसाइकल, पास्चूल
एंड व्हाट इज पीटीकी एंड अदर थिंग्स। सबसे पहले जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मैक्यूल। जो मैक्यूल है इस फिगर पे आप दिख रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये मैक्यूल है। मैंने कहा था ना ये फ्लैट होता है, फ्लैट लीजन, ठीक है। पहले ही मैंने इसकी टर्मिनोलॉजी जब हम पढ़े तो ये फ्लैट लीजन की एग्जाम्पल है। अगर आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि फ्लैट लीजन की एग्जाम्पल बोलो तो मैक्यूल है। मैक्यूल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, फ्लैट लीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहेंगे बिल्कुल फ्लैट लीजन है। व्हाट्स विजिबल बिकॉज ऑफ चेंज इन स्किन कलर। ये हमेशा विजिबली छुपा हुआ नहीं रहता है बल्कि विजिबल होता है, क्योंकि इसमें चेंज होती है, जो स्किन की कलर होती है वो चेंज होती है, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्किन का कलर जो है इस एरिया में वो बहुत ही चेंज हो गया है, इसलिए ये विजिबल होता है। क्योंकि ये फ्लैट होता है तो इसलिए ये फील नहीं हो पाता, क्योंकि फ्लैट चीज़ें फील नहीं होती है, एलिवेटेड चीज़ें फील होती है। एज देयर इज़ नो चेंज इन स्किन टेक्सचर, जैसा कि मैंने कहा स्किन टेक्सचर में चेंज नहीं होती है इसलिए ये फील नहीं होता है। मैक्यूल में भी वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड। मैक्यूल वेल डिफाइंड भी हो सकता है या इल डिफाइंड भी हो सकता है, यानी राउंडेड भी हो सकता है या हैफर्जली इरेगुलर हो सकता है, जिसको हम इल डिफाइंड बोलते हैं। एंड मे बी ऑफ एनी साइज, ठीक है, ये किसी भी साइज का हो सकता है। मैक्यूल में भी हाइपर पिगमेंटेड, जिनको हम लोग कैफियलॉ, ये कुछ फ्रेंच है, आप खुद पढ़िए, कैफियलॉट और कैफियलॉ। मैक्यूल्स जो कॉफ़ी कलर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कैफिलॉ मैक्यूल्स होते हैं जो हाइपर पिगमेंटेड होते हैं और डी पिगमेंटेड भी, जैसा कि इस फिगर में आप लेप्रेसी की वजह से जो है डी पिगमेंटेड मैक्यूल दिखाया गया है ड्यू टू वर्टिलिगो, ये डी पिगमेंटेड मैक्यूल है। तो लेप्रेसी में हमारे पास डी पिगमेंटेड मैक्यूल मिलता है, यानी फ्लैट लीजन्स मिलते हैं जिन्हें हम मैक्यूल बोलते हैं और वो डी पिगमेंटेड होते हैं। अब मैक्यूल तो फ्लैट लीजन हो गया, ये विजिबल होता है, ये चेंज इन स्किन कलर की वजह से विजिबल होता है, इसमें टेक्सचर नहीं होता इसलिए फील नहीं हो पाता है। ये वेल डिफाइंड या इल डिफाइंड होता है, ये एनी साइज का होता है, ये हाइपर पिगमेंटेड होता है जिसको हम कैफियलॉ मैक्यूल्स बोलते हैं, और डी पिगमेंटेड जैसा कि वर्टिलिगो में होता है। इस तरह जो मैक्यूल होता है वो एरिथेमेटस होता है। एरिथेमेटस लीजन्स कैन बी ड्यू टू वैस्कुलर डायलेटेशन और एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ ऑर्बिसीज, जिसको हम पर्प्यूरा बोलते हैं। कभी कभार क्या होता है कि स्किन पे कुछ मैक्यूल्स होते हैं जो एरिथेमेटस होते हैं, जिनको हम एरिथेमेटस लीजन्स बोलते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वैस्कुलर डायलेटेशन या एक्स्ट्रा वैसेशन होती है आरबीसीज की, और जब भी आरबीसीज वेसल्स के बाहर निकलती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पर्प्यूरा। तो पर्प्यूरा इज नथिंग बट इट्स द एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ आरबीसीज। जब आरबीसीज वेसल्स से बाहर आए उस कंडीशन को बोलते हैं पर्प्यूरा। और हम लोग इस वैस्कुलर डायलेटेशन और उस पर्प्यूरा को, यानी वैस्कुलर डायलेटेशन हो गई कि वेसल्स डायलेट हो गई है, उसकी वजह से एरिथेमेटस लीजन डेवलप हो गया है, या एक्स्ट्रा वैसेशन हुई है आरबीसीज की, उसकी वजह से लीजन हो गया है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक टेक्निक से जिसको हम डायास्कोपी बोलते हैं। व्हाट इज डायास्कोपी? होता क्या है कि इरिथमेटस मैक्यूल्स में व्हेन फर्म प्रेशर इज अप्लाइड यूजिंग अ ग्लास स्लाइड इफ रेडनेस ब्लांचेस इट इज ड्यू टू वैस्कुलर डायलेटेशन। देखिए हमें क्या करना है, हमें एक ग्लास स्लाइड लेना है। इरिथमेटस मैक्यूल को हमें अगर देखना होगा कि ये किसकी वजह से है, ये वैस्कुलर डायलेटेशन की वजह से है कि ये एक्स्ट्रा वैसेशन हुई है आरबीसीज की, उसको हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट आता है जिसको हम लोग डायस्कोपी बोलते हैं। इरिथमेटस मैक्यूल्स को हम लोगों को क्या करना है, हमें ग्लास स्लाइड लेना है, जैसा कि इस फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे। यहाँ पे इसने ग्लास स्लाइड लिया है और इसने प्रेशर अप्लाई किया है। जब इसने प्रेशर अप्लाई किया है तो पहले में क्या हुआ है कि
पहले में वेस्क्यूलर डायलेटेशन की वजह से जो है रेडनेस हो गई है, तो वहाँ पे ब्लांच हो गया, यानी रेडनेस गायब हो गई। लेकिन दूसरे में जब हमने प्रेशर अप्लाई किया दूसरी फिगर में, वहाँ पे ब्लांचिंग नहीं हुई है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ आरबीसीज की वजह से पर्प्यूरा जो है वो परसिस्ट कर रहा है। यहाँ पे पर्प्यूरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लांचिंग नहीं हुई है ग्लास स्लाइड से, लेकिन यहाँ पे ब्लांचिंग जो है वो हुई है, इसी को बोलते हैं डायस्कोपी। यहाँ पे ब्लांचिंग हुई, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ डायलेटेशन हो गई है आरबीसीज की, सॉरी वेसल्स की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लांचिंग हो गई है। यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया एरिथमेटस लीजन पे, लेकिन यहाँ पे एरिथमा जो है वो परसिस्ट किया, यहाँ पे नो ब्लांचिंग, यहाँ पे ब्लांचिंग नहीं हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे आरबीसी जो है वो बाहर निकली है वेसल से, यहाँ पे पर्प्यूरा हो गया है। तो यहाँ पे इस मेथड को जो हमें हेल्प करेगा टू डिफ्रेंशिएट द एरिथमा ड्यू टू वेस्क्यूलर डायलेटेशन एंड दैट ड्यू टू द एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ आरबीसीज, इस मेथड को हम लोग डायस्कोपी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वेदर द erythematous macule is due to the extravasation of RBCs or it's due to just vascular dilatation, ये आप पता लगा सकते हो by a method that's called a diascopy, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो दूसरा लीजन पढ़ने जा रहे हैं, जो एलिवेटेड लीजन है, उसको हम लोग पैप्यूल बोलते हैं। ये एलिवेटेड लीजन होता है, ये स्मॉल होता है, सॉलिड होता है। हमेशा याद रखें, जो हमने इससे पहले वो फ्लैट था, सर्कमस्क्राइबर था, लेकिन ये सॉलिड होता है। ये लीजन जो पैप्यूल होता है वो सॉलिड लीजन होता है और लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। A major portion of papule projects out above the skin and can be due to hyperplasia of cells of epidermis or dermis। कहते हैं कि इसका मेजर पोर्शन प्रोजेक्ट होता है स्किन से और ये हो सकता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस की हाइपरप्लेशिया हो, या डर्मिस में कुछ मेटाबॉलिक डिपॉजिट्स हो गए हो जमा, या सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेट हो गया हो जमा डर्मिस में। तो इन 3 कंडीशंस की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट आउट होता है। यहाँ पे आप ये जो है ये सॉलिड लीजन जो है एलिवेटेड लीजन, ये पैप्यूल है, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये डोम शेप्ड है, पहले में डोम शेप्ड ऑफ मिलिया एंड नंबर सेकंड ये वाला जो है ये फिलिफॉर्म है, ठीक है। ये फिलिफॉर्म वॉट में दिखाया गया है पैप्यूल, ये एलिवेटेड पैप्यूल है, फिलिफॉर्म पैप्यूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पैप्यूल जो है ये एक एलिवेटेड लीजन है जो सॉलिड होता है। ये एक वो लीजन होता है जो हाइपरप्लेशिया ऑफ सेल्स की वजह से होता है। ये मेटाबॉलिक डिपॉजिट्स की वजह से हो सकता है कि इन्फ्लेट्रेट हो गया हो जमा डर्म्स में, इन सारी कंडीशंस की वजह से हो सकता है। और ये सेसाइल यानी सिंगल हो सकता है या प्यूडेंकुलेटेड, उसमें प्यूडेंकल भी हो सकता है। ये डोम शेप्ड हो सकता है या इसका फ्लैट टॉप होगा या फिलीफॉर्म टॉप होगा या अम्बलाइकेटेड, इसकी ये शेप हो सकती है। और ये स्मूथ हो सकता है, ये रफ हो सकता है, वेरूशियस सरफेस हो सकता है, और ये लेटर ऑन चेंज हो सकता है वेजाइकल्स और पस्चूल्स में। पैप्यूल जो है वो इवॉल्व हो सकता है, ये पैप्यूल जो है ये इवॉल्व हो सकता है इनटू वेजाइकल, लेटर ऑन बना सकता है पस कंटेनिंग वेजाइकल या पस, वाटर कंटेनिंग वेजाइकल या फ्लूइड कंटेन या पस कंटेन, पस्चूल भी बन सकता है। इट मे बी सराउंडेड बाय स्केल्स एज इन पैप्यूलोस्क्वामस डिसऑर्डर्स में। ये जो पैप्यूल है ये स्केल से भी सराउंड होता है। नाउ जो नेक्स्ट हमारा है वो है प्लाक। It's an area of unaltered consistency of skin which is usually elevated। हम लोग elevated lesions ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे स्किन की जब कंसिस्टेंसी जो है वो अल्टर हो जाए बट कैन बी डिप्रेस्ड और flushed with surrounding skin has large surface area in comparison to its height। प्लाक उसको बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा जब हम एलिवेटेड लीजन्स पढ़ रहे थे तो मैंने कहा प्लाक जो है वो इंड्यूरेटेड एक एलिवेटेड लीजन होता है। इंड्यूरेटेड लीजन होता है जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेप्थ।
तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग प्लाक बोलते हैं। इसमें जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ। डाया इज़ मोर इन प्लाक एज कम। अगर आपको कोई बोलेगा कि प्लाक जो है, सॉरी, उसमें क्या खास चीज़ है, उसमें डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ। आप देख पा रहे होंगे इसने पूरा स्किन एरिया जो है वो कवर किया हुआ है एज कम्पेयर टू हिट्स साइड। इट्स फॉर्मड आइदर बाय एनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल पैप्यूल्स आर देयर कॉन्फ्लुएंस। जब इंडिविजुअल पैप्यूल्स जो है वो जमा हो गए होंगे तो उनसे प्लाक बनता है। पैप्यूल्स जो है, ये प्लाक्स या पैप्यूल्स कहिए, इट मे बी डिस्कॉइड और एन्यूलर। ये दिखाया गया है प्लाक यहाँ पे, एरिया ऑफ ऑल्टर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ स्किन विच कैन बी डिस्कॉइड, जैसे सोरियासिस में दिखाया गया है, ये डिस्कॉइड शेप्ड प्लाक है। और इट कैन बी एन्यूलर, ये भी सोरियासिस में ही है। इसमें सेंटर क्लियरिंग होती है और ये एन्यूलर रिंग शेप्ड होता है ये प्लाक। ये सोरियासिस में कंडीशंस मिलती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा एलिवेटेड लीजन्स में, वो है ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू बाय नॉर्मल, वो नॉर्मल भी हो सकता है एनलार्जमेंट, या पैथोलॉजिकल मटेरियल और सेल्स टू फॉर्म अ मास, और जिससे हमारा एक मास बनता है। वो टिश्यू नॉर्मल भी हो सकता है, वो सेल्स नॉर्मल भी हो सकता है जिनकी एनलार्जमेंट हो गई हो, या पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, और वो एक मास बनाते हैं। सिंस दिस टर्म में अलार्म द पेशेंट इज़ बेटर टू यूज़ द लार्ज नोड्यूल्स इंस्टेड ऑफ ट्यूमर। हमें ट्यूमर के बदले जो है हमें इनको लार्ज नोड्यूल्स भी बोलना है। ये लार्ज नोड्यूल्स दिखाए गए हैं एक्सिलरी एरिया में यहाँ पे, तो इनको हम लार्ज नोड्यूल्स ही, एनलार्जमेंट होती है स्किन की। तो नंबर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है ब्लिस्टर्स। व्हाट आर ब्लिस्टर्स? दीज आर फ्लूइड फिल्ड, ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं, फ्लूइड फिल्ड लीजन्स। सर्कमस्क्राइब्ड एलिवेटेड लीजन्स, ये भी एलिवेटेड लीजन्स होते हैं, लेकिन ब्लिस्टर्स में खास बात है कि ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं, इनमें फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड फिल्ड जो है ये रहते एलिवेटेड लीजन्स, ये डेवलप होते हैं ड्यू टू स्प्लिट इन स्किन। अब अगर इनका डायमीटर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होगा तो तब हम इनको वेजाइकल बोलते हैं। ठीक है, अगर इनका डायमीटर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होगा तब हम इनको, दे आर कॉल्ड वेजाइकल्स। लेकिन अगर इनका डाया 0.5 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगा तब हम इनको बुल्लेज बोलते हैं। तो इन ब्लिस्टर्स वी सी देयर आर वेजाइकल्स एंड देयर आर बुल्ली। यहाँ पे ये वेजाइकल्स है जो स्प्लिट ऑफ स्किन की वजह से फ्लूइड फिल्ड लीजन्स बन गए हैं, और ये बुल्ला दिखाया गया है। सर्कमस्क्राइब्ड फ्लूइड फिल्ड लीजन्स, वेजाइकल्स आर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर और बुल्ले आर ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट बुल्ले, जो ये बुल्लीज होती है यानी कि वो फ्लूइड फिल्ड लीजन्स जिनका डायमीटर ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये सब कॉर्नियल भी होते हैं, इंट्रा एपिडर्मल और डर्मो एपिडर्मल, यानी ये एपिडर्मिस के अंदर विदिन होते हैं या डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे होते हैं। तो ये वाला जो है इसमें लेवल ऑफ स्प्लिट जो स्किन का होता है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है उसके बिलो होता है, इसलिए इसको सब कॉर्नियल भी बोलते हैं, सब कॉर्नियल बुले। दूसरा होता है इंटरडर्मल, इसमें जो है स्पाइनस लेयर और ग्रैन्युलर लेयर जो है स्किन या सुप्राबेजल लेयर जो है वहाँ तक स्प्लिट होती है, लेवल ऑफ स्प्लिट स्किन की, इसलिए इसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। इस यहाँ पे स्पाइनस लेयर तक स्प्लिट चला जाता है या सुप्राबेजल लेयर तक या ग्रैन्युलर लेयर तक, इसलिए इसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। डर्मो एपिडर्मल में डर्मो एपिडर्मल जंक्शन तक स्प्लिट चला जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक, ईज ऑफ रप्चर, यहाँ पे वेरी थिन रूफ होता है, सो रप्चर्ड वेरी इजीली, क्योंकि रूफ जो ऊपर से रूफ होगा ना कैविटी का वो बहुत ही थिन होता है सब कॉर्नियल में, इसलिए वो जल्दी रप्चर होता है। सो यूजुअली नॉट सीन, इसलिए हमें दिखता नहीं क्योंकि ये फट जाते हैं। इंट्रा एपिडर्मल में भी थिन रूफ होता है, ये
रेस रेडिली रप्चर होता है। यहाँ पे डर्मो एपिडर्मल में ये डीप होता है तो ये थिक रूफ होता है। रप्चर लीस्ट रेडिली सो पर्सिस्टेंट। ये वाला डर्मो एपिडर्मल जो बुल्ले है वो पर्सिस्ट करता है क्योंकि इसका जो रूफ होता है वो बहुत ही थिक होता है। फ्लैसिडिटी, वेरी फ्लैसिडी, बहुत ढीला डाला होता है। जो सब कॉर्नियल जैसे स्ट्रैटम कॉर्नियम के बिलो जो होता है ये वेरी ढीला डाला होता है। यूजुअली फ्लैसिड, कभी कभार ये ढीला डाला होता है। ये बहुत टेंस होता है ये वाला डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। कॉन्टेंट्स किसके, स्कैंटी फ्लूइड होता है, ऑब्वियसली ये ऊपर ही होता है तो इसमें इतना फ्लूइड नहीं भरा होता है सब कॉर्नियल में। एंट्रोडर्मल में सिरस और टर्बल फ्लूइड होता है और जो डर्मो एपिडर्मल है इसमें सिरस टर्बल ऑफन हेमोरेजिक फ्लूइड नज़र आता है। तो फिर इसके बाद अगर हम रप्चर करेंगे तो फॉर्म एरियाज ऑफ स्केल क्रस्ट, नो इरोजन्स। यहाँ पे जब ये रप्चर होता है यहाँ पे ये एरियाज ऑफ स्केल्स बनती है, क्रस्ट्स बनते हैं या, लेकिन इरोजन्स नहीं होती है, वहाँ पे इरोड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इरोजन्स बनते हैं जो कवर होते हैं क्रस्ट्स से। यहाँ पे भी इरोजन्स बनते, अल्सर्स बनते हैं, दे आर कवर्ड विथ क्रस्ट्स और ये हेमोरेजिक होता है। कौन, डर्मो एपिडर्मल। ऑन हीलिंग यहाँ पे नॉर्मल स्किन होती है, यहाँ पे इंट्रा एपिडर्मल में हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है और यहाँ पे डर्मो एपिडर्मल अगर वहाँ पे स्कारिंग होएगी तो हीलिंग होएगी तो मीलिया और स्कारिंग तो पाई जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ सब कॉर्नियल में फिम्फिगस फॉलिएशियस या बुल्लस इम्पैटिगो जो है वो बुल्ला की एग्जाम्पल है, सब कॉर्नियल बुल्ला की। याद रहे, फिम्फिगस फॉलिएशियस एंड बुल्लस इम्पैटिगो। इंट्रा एपिडर्मल की एग्जाम्पल